اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے D2 سسٹم کا جو 120 مائکرو اسٹیٹ ہے وہ پریزنٹ کروں گی پجن ہول ڈائیگرام کے ذریعے سے۔ D2 سسٹم کے لیے سب سے پہلے گراؤنڈ اسٹیٹ میں جو اٹامک ٹرم سمبل ہے اس کو ڈٹرمائن کریں گے۔ D2 سسٹم کا اگزامپل ہے وینیڈیم ان +3 آکسیڈیشن اسٹیٹ۔ وینیڈیم کے D سب شیل میں 2 الیکٹران ہیں، یہ ہمارے پاس اٹامک ٹرم سمبل کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس میں 2s+1 اسپن ملٹیپلسٹی ہے، جو J ہے وہ ٹوٹل اینگولر مومنٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کیپٹل L ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے آربیٹال اینگولر مومنٹم کو۔ کیپٹل L ایٹم میں جتنے بھی الیکٹران ہیں اس کے آربیٹال اینگولر مومنٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کیپٹل L برابر ہے L1 + L2 + L3۔ یہ L1 کیا ہے؟ L ریپرزینٹ کرتا ہے سنگل الیکٹران کے آربیٹال اینگولر مومنٹم کو۔ آربیٹال اینگولر مومنٹم کیا ہے؟ الیکٹران نیوکلیس کے ارد گرد ایک اسپیسیفک آربیٹال میں ریوالو کرتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو اینگولر مومنٹم ہے اس کو ہم آربیٹال اینگولر مومنٹم کہتے ہیں۔ اینگولر مومنٹم کوئی بھی باڈی موشن میں ہے اور اس کے جو ویلاسٹی ہے اور ماس ہے اس کے پروڈکٹ کو ہم مومنٹم کہتے ہیں۔ اگر یہ ریوالو کرتا ہے سرکل میں تو اس کو ہم اینگولر مومنٹم کہتے ہیں۔ الیکٹران چونکہ آربیٹال میں ریوالو کرتا ہے اس لیے اس کو ہم آربیٹال اینگولر مومنٹم کہتے ہیں۔ اگر L 0 ہوگا تو ہمارے پاس اس کو ہم انڈیکیٹ کریں گے کیپٹل S کے فارم میں۔ اگر 1 ہوگا تو اس کو ہم انڈیکیٹ کریں گے کیپٹل P کے فارم میں۔ اگر 2 ہوگا تو اس کو ہم انڈیکیٹ کریں گے D کے فارم میں۔ L = D سب شیل کے لیے L = 2 + 1 = 3۔ یہ 2 + 1 کہاں سے آیا؟ یہاں دیکھیں ایچ سب شیل کے نیچے ایک اسپیسیفک ویلیو دیا ہوگا۔ یہ فرسٹ آربیٹال کا +2 ہے، سیکنڈ آربیٹال کا +1 ہے، تھرڈ آربیٹال کا 0 ہے، فورتھ کا -1، 5 آربیٹال کا -2۔ اس الیکٹران کے نیچے +2 ہے، اس الیکٹران کے نیچے +1 ہے، تو 2 + 1 = 3۔ یہ +2 + 1 0 -1 -2 کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے پاس Ml = 2L + 1۔ L ویلیو D کے لیے 2 ہے تو 2 2s are 4 + 1 = 5۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سب شیل میں 5 آربیٹالز ہیں۔ اس سب شیل میں ہمارے پاس 5 آربیٹال ہیں۔ (2s+1) اسپن ملٹیپلسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایک ایٹم میں کتنے ان پیئرڈ الیکٹران ہیں؟ ایک ایٹم میں کتنے ان پیئرڈ الیکٹران ہیں؟ اگر ایک ان پیئرڈ الیکٹران ہے تو اس کا ویلیو ½ ہوگا۔ بعض اوقات ہاف 1 اور 2 سے پہلے یا تو مائنس لکھا ہوتا ہے یا پلس۔ یہ مائنس ریپرزینٹ کر رہا ہے اینٹی کلاک وائز مومنٹ کو، یہ پلس ریپرزینٹ کرتا ہے کلاک وائز مومنٹ کو۔ اب J کیا ہے؟ J ہم ڈٹرمائن کرتے ہیں L+ ویلیو سے یا L- ویلیو سے۔ L ہمارے پاس 3 ہے، S ہمارے پاس 1 ہے، 3 + 1 4 آ گیا، 3 - 1 2 آ گیا۔ یہاں پر ہم نے 2 لیا ہے۔ D سب شیل میں 2 الیکٹران ہیں، ایچ الیکٹران کا ½ ویلیو لے لے تو اس سے ہمارے پاس 1 آ جائے گا۔ S برابر ہے 1 کا۔ اب L سے ایڈ کرے 1،
या L से माइनस करें 1, इससे 2 आ जाएगा, इससे 4 आ जाएगा। इस केस में आप लोगों ने 2 लेना है। क्यों 2 लेना है? क्योंकि ऑर्बिटल हाफ फील्ड से लेस है, इसलिए हम J की लोवेस्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे। D2 सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट हमारे पास है 3F2। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ये एक फार्मूला है, इसमें डी सबशेल में जितने ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 10 वैल्यू आ जाएगा, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है, 2 मौजूद है। तो 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ पिक्टोरियल ओवर 2 पिक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 पिक्टोरियल। 10 माइनस 2 से 8 पिक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 पिक्टोरियल और 10 पिक्टोरियल। ये 10 पिक्टोरियल का क्या मतलब है? 10 का पिक्टोरियल का मतलब है कि 10 से जितने भी नंबर नीचे हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसको आप इसमें मल्टीप्लाई करें, इससे जो वैल्यू आ जाएगा वो 10 पिक्टोरियल के बराबर होगा। इससे फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को हम 45 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, या डिफरेंट माइक्रोस्टेट जो रिप्रेजेंट कराए वो 45 है। अब पिजन होल डायग्राम के ज़रिए से हम इसके एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रो में आप लोगों ने ml वैल्यू लिखना है। ये स्मॉल ml वैल्यू है +2 +1 0 -1 -2। ये जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है ये ml2 × 2 + 1 = 5, ये वैल्यू है फर्स्ट रो में। ये जो नीचे वर्टिकल कॉलम है फर्स्ट कॉलम में, ये कैपिटल ml को रिप्रेजेंट करता है। इस इलेक्ट्रॉन का जो ऊपर वैल्यू है +2 या +1, इसको हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, यहाँ से यहाँ वैल्यू हमारे पास कैपिटल ml का आता है। 2 इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में, तो ये फर्स्ट माइक्रोस्टेट हो गया। ये हमारे पास पूरा डायग्राम पिजन होल डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। पिजन होल का मतलब ये है कि एक होल में हम 2 पिजन या 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से मैक्सिमम नहीं, 1 भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये सेकंड माइक्रोस्टेट हो गया, ये थर्ड माइक्रोस्टेट हुआ। रिमेंबर, इस माइक्रोस्टेट का या इस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो डिफरेंट है इस माइक्रोस्टेट से। आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को पैरेलल रखना है। फर्स्ट अरेंजमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसका हेड ऊपर होगा, सारे क्लॉकवाइज स्पिनिंग मोशन शो करेंगे, इसको हम पैरेलल स्पिन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये एक माइक्रोस्टेट हुआ। सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दे और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको इस कॉलम में रखे। फिर थर्ड अरेंजमेंट में इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह रखे और ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रखे। ये यहाँ हुआ, ये यहाँ पर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले ले और फिर स्टार्ट करें। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसी कॉलम में रहेगा और ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में। अब यहाँ से स्टार्ट करें, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, और यहाँ से यहाँ हेड सारे के ऊपर होगा। और फिर इसका ml वैल्यू कैलकुलेट करें, +2 +1, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का वैल्यू +3 आ गया। इसका +2 +0, तो यहाँ पर +2 आ गया। इस इलेक्ट्रॉन का +2 -1, तो यहाँ पर -1 आ गया। अब सेकंड स्टेप में देखिए, ये हमारे पास
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइक्रोस्टेट हुए हैं। आप लोगों ने तकरीबन 45 माइक्रोस्टेट डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, याद रखें एक्साइटेड स्टेट में हम जे वैल्यू को कंसाइडर नहीं करते, जे वैल्यू को हम कंसाइडर नहीं करते। ये 10 माइक्रोस्टेट हुए, 45 आप लोगों ने बराबर करने हैं। अब सेकंड देखें, ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है इसका हेड नीचे कर दे। पहले वाला हमारे पास क्लॉकवाइज था, अब सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए फर्स्ट में 2 है, फर्स्ट में 2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फिर इस थर्ड कॉलम में इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर फर्स्ट अरेंजमेंट जो था उसका हेड नीचे कर दे तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, सारे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज 10 माइक्रोस्टेट ये हुए। और इसका वैल्यू यहाँ पर लिखे +2 +1 +3। रिमेंबर फर्स्ट वाल में क्लॉक स्पिनिंग मोशन क्लॉकवाइज था तो इसका इस वैल्यू 1 होगा, ईच का +½ और यहाँ पर -1 होगा, ½ +½ तो हमारे पास यहाँ पर भी +1 होगा, -, ये थर्ड अरेंजमेंट है। 10 ऊपर हो गए, 10 नीचे, 20। अब ये दूसरा, इसमें आप फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट जो माइक्रोस्टेट है उसमें पेयर्ड ले, फिर यहाँ पर एक रख दे, फिर यहाँ पर एक, ये थर्ड हुआ। थर्ड माइक्रोस्टेट में हेड ऊपर इसका हेड नीचे, फोर्थ माइक्रोस्टेट में हेड ऊपर इसका हेड नीचे, 5 माइक्रोस्टेट में हेड ऊपर इसका हेड नीचे। अब पेयर्ड यहाँ से स्टार्ट कर ले, पेयर्ड, फिर रिपीट करें उस प्रोसेस को। फर्स्ट में हेड ऊपर, सेकंड में हेड नीचे, फर्स्ट में हेड ऊपर, सेकंड में हेड नीचे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर आए तो हमारे पास ये हो गए कितने माइक्रोस्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 20 ऊपर थे, अब 20 + 15 35 हो गए। अब फोर्थ अरेंजमेंट आप लोगों ने क्या करना है, और ये इसका ml वैल्यू है फोर्थ में, ये फोर्थ में, इसमें आप लोग ये जो इससे पहले वाला था उसमें पेयर्ड था ना, फर्स्ट रो में पेयर्ड को छोड़े, जो पेयर्ड कॉलम पेयर्ड रो है उसको छोड़े माइक्रोस्टेट। अब इसमें इस पिन का हेड ऊपर है और इसका हेड नीचे है। अब लास्ट अरेंजमेंट में इसका हेड नीचे है और इसका हेड ऊपर है। इससे पहले वाला जो था उसको आप उलट करें, जिसका हेड ऊपर था उसको नीचे कर दे और वो माइक्रोस्टेट छोड़ दे जिसमें पेयर्ड हो, और जिसका हेड ऊपर नीचे था उसको ऊपर कर दे। तो इससे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइक्रोस्टेट ये हुए पूरे 45 माइक्रोस्टेट से, पूरे 45 माइक्रोस्टेट से। लास्ट अरेंजमेंट में हमने जिसका हेड ऊपर था उसको नीचे किया और जिसका हेड नीचे था उसका ऊपर किया, ये वाला अरेंजमेंट है। इसमें आप लोगों ने पेयर्ड वाले को छोड़ना है और ये जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका जो हेड ऊपर है इसको नीचे करना है और जिसका नीचे है उसको ऊपर करना है लास्ट अरेंजमेंट में। अब एक्साइटेड स्टेट में हम थर्म सिंबल को किस तरह डिटरमाइन करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में थर्म सिंबल को हम इस तरह डिटरमाइन करते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट अरेंजमेंट को लेना है। फर्स्ट अरेंजमेंट में ये 3 रिप्रेजेंट करता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, और यहाँ पर आप लोगों ने लेना है 2 सेट,
اس طرح کرنا ہے، +3 تو یہاں پر -3 ہے، +-3 دونوں ہے، پھر +-2 پھر +-1 از ایکول پھر 0، ٹھیک ہے۔ اگر پورا سیٹ دیتا ہے جس نمبر سے اسٹارٹ ہوا ہے تو پھر اسی نمبر کو آپ لوگوں نے ایکسائٹڈ اسٹیٹ کے لیے لینا ہے، 3f 3p، اسی طرح +1 0 تو اس کے لیے 3p۔ اب یہ جو تھرڈ ارینجمنٹ ہے اس کو دیکھیں، ٹرم GDS از یوزڈ، اس میں +-4 سے اسٹارٹ ہوا ہے، 4 سے اسٹارٹ ہوا ہے تو 4 پر L کی ویلیو G ہے، اور پورے سارے اسٹیٹس کو کمبائن کر لیں تو اس سے ہمارے پاس یہ ایکسائٹڈ اسٹیٹس آف D2 سمبل آ جائے گا۔